We welcome, sir. Or let me introduce Professor Anand Sharma to our scholars. He is head of photography applied art department in Government College of Chandigarh. और उनका academic qualification BFA, MFA and PhD in applied art from Banaras Hindu University, diploma in computer application and NET. He is gold medalist from BHU. Moreover, उनके पास में scholarships हैं 1990-92 Cultural Excellence Scholarship Banaras Hindu University, 91, 92, 93, 94 Merit Scholarship BHU. Or he is recipient of so many awards, national and international awards, and he also have participated, and moreover he has conducted more than 10 seminars, and he has a long list of participations of exhibitions and work he has done, like in 2007 annual art exhibition by Centurion Bank of Punjab, Chandigarh, like 2011 All India exhibition at Lalit Kala Academy, Ravindra Bhavan, New Delhi. In 2012 Untitled Group Show at Punjab Lalit Kala Academy, Chandigarh Painting Exhibit. और उनके awards हैं 1992 Drawing Silver Medal, JM Ahivasi Award, Banaras Hindu University, Varanasi, BHU Gold Medal for Merit First in Applied Art, BFA, Excellence in Art Award by Camlin Limited, Bombay, or 1988-89 Sketching, Faculty of Visual Arts, BHU, and E-Zone Award Gold Medal, E-Zone Inter-University Youth Festival, Odisha, Pen and Ink Drawings Annual Art Exhibition, BHU, and Appreciation Letter by Department of Youth Welfare, Punjab University, Chandigarh, or for first time PU won All India Youth Festival of Fine Arts Trophy. And then there are so many more. National Award, Emblem Design Cash Prize from Lucknow. Then 1993 में Excellent Performance in Art, Camlin Art Award, Bombay. और फिर there are so many, like 2018 Photography Award by Chandigarh Lalit Kala Academy, Chandigarh. तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक बहुत लंबी लिस्ट है अवार्ड्स की, उनके पार्टिसिपेशंस की, और इसके अलावा उनके पास में मोर देन 12 वर्कशॉप्स हैं जो उन्होंने एज अ रिसोर्स पर्सन जिनमें पार्टिसिपेट किया है. और appreciation or testimonials, let us know about appreciations. 1992 Administrative Warden Faculty of Ayurveda, BHU for Janki and Annual Exhibition. 1993 Dean Faculty of Visual Arts, Banaras Hindu University for Foundation Day, Plateau. 1994 Director, Indian Railways Cancer Institute, NER, Varanasi. 1994 Head Department of Fine Arts, Kashi Vidyapeeth, Varanasi. And he was also Head Applied Art Department, Faculty of Visual Arts, Banaras Hindu University, Varanasi. 1994 Lecturer, Applied Art Department, Faculty of Visual Arts, BHU, Varanasi. And 1994 Head Sculpture Department, Faculty of Visual Arts, Banaras Hindu University, Varanasi. 2002 and 3 Medical Health and Family Welfare and District Magistrate, Mirzapur, UP. So there are so many accolades for आनंद शर्मा सर. और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि he is a well renowned artist. और since उनकी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बहुत ज्यादा काम भी किया है, जैसे प्रोफेशनल और टीचिंग एक्सपीरियंस में असिस्टेंट प्रोफेसर 2003 टू कंटिन्यू, और फिर he became head ex art director and visualizer, ET advertising, ex artist cum photographer, medical health and family welfare. तो यहाँ पर हमें जैसे कि हम लोग सर की पर्सनालिटी देख रहे हैं कि इट इज डाइवर्सिफाइड वर्क्स और उनके डाइवर्सिफाइड उनके प्रेजेंटेशन सारे बहुत ही अच्छा. वी हैव हिम विद अस. डेली लाइफ में आप लोग अगर शुरुआत से लेके दिन में अगर आप निकलते हैं, प्रतिदिन अगर आप देखें तो आपके व्यवहार में जो कला आती है वो हमारी व्यवहारिक कला है. संभवतः अगर हम देखें तो अप्लाइड आर्ट को
हम लोग ड्राइंग और पेंटिंग के साथ साथ अगर हम देखें तो माध्यम हमारा जो है अप्लाइड में जुड़ता ही जुड़ता है। अगर आप देखें सुबह से लेके शाम तक में माध्यम को देखें तो पेंट किए हुए आपको बहुत से साइन बोर्ड दिख जाएंगे, बहुत से विजुअल्स आपको दिखेंगे, फिर आपको जो है टीवी पे ऐड आपको दिख जाएंगे। इस तरीके से करते हुए बहुत से दृश्य मिलते हैं जो कि आपको अप्लाइड आर्ट से रिलेटेड होते हैं। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा कि हम अप्लाइड आर्ट को या व्यवहारिक कला को कितने तरीके से बोल सकते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा? सुनील जी बताइए जरा सा। कितनी तरीके से अप्लाइड बोल आर्ट को सकते और व्यवहारिक कला को हम किसी और संदर्भ में कैसे बोल सकते हैं? सर मतलब कॉमर्शियल आर्ट तो इंग्लिश में ही बोलते हैं सर, इसके अलावा व्यवहारिक कॉमर्शियल आर्ट उपयोग से संबंधित है क्या सर? अनुप्रयुक्त कला भी कह सकते हैं। तो सर, थोड़ा सा हम आपको उपयोगी कला भी कह कला की सकते हैं। दुनिया में तो आप ये ध्यान रखिए कि जो व्यवहारिक कला में डेली रूटीन में जो चीजें आती हैं, हम आपको थोड़ी सी एक प्रिंटिंग की दुनिया में लेके जाएंगे। आप लोग नोट यूज करते होंगे, सभी लोग नोट यूज करते हैं। वो पता है आपको कि नोट कैसे छपता है? ग्राफिक के हमारे प्रिंट मेकिंग की बच्ची है, वो बता सकती है कि किस प्रोसेस से नोट हमारा छपता है? सर उसके लिए एक सबसे पहले एक डाई जो एक मैट्रिक्स रेडी किया जाता है उस नोट के लिए, तो उसका इंप्रेशन जैसे हम डिजिटल प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस प्रिंट मेकिंग होता है, प्रिंट मेकिंग होता है। यस हाँ, तो हमारे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे प्रिंट अप्लाइड आर्ट में प्रिंट जो है अगर हम उसको डिवाइड करें कि प्रिंट कितने प्रकार से हो सकता है, तो अगर हम कहें तो उसमें देखिए, अगर आप प्रिंट मेकिंग में लेटर प्रेस हो सकता है, ऑफसेट हो सकता है, और स्क्रीन प्रिंटिंग हो सकता है। स्क्रीन प्रिंटिंग के अलावा रोटोग्राफियर हो सकता है। जो आप प्रिंट मेकिंग के बहुत से बच्चे हैं, बहुत से ड्राइंग एंड पेंटिंग के बच्चे हैं, जो चीजें हमारी एक दूसरे से मिली हुई रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर में थोड़ी सी भी अपने आप में बढ़ने की क्षमता रहेगी, तो आप ये निश्चित रूप से समझ लें कि फाउंडेशन कहीं से भी आपको रोकेगा नहीं। लेकिन आपके अंदर की क्षमता, आपके सीखने की क्षमता, ये महत्वपूर्ण है। हम माध्यम जब भी हम कहते हैं तो माध्यम में हमें कहीं ना कहीं पे एक रुकावट नहीं आती है, बल्कि माध्यम को हम अपना लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको प्रिंटिंग की दुनिया में लेके जाता हूं। ठीक है, आपको ये दिख रहा है? यस सर। बता सकते हैं ये क्या है? ये स्क्रीन प्रिंटिंग का फ्रेम, एक आपके पास फ्रेम है जिसमें कपड़े लगे हुए हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग से बहुत ही सामान्य तरीके से हम प्रिंटिंग कर लेते हैं, लेकिन हम स्क्रीन प्रिंटिंग से पीछे भी जाएं तो हमारी लिथो से प्रिंटिंग होती थी, लेटर प्रेस से प्रिंटिंग होती थी, ऑफसेट से होती थी, और आप सभी चिप्स खाए होंगे। यस सर। चिप्स, तो चिप्स किस चीज से प्रिंटिंग होती है? कोई भी ऐसे बता दे, अनायास ही बता दे, कोशिश करिए। प्रिंट मेकिंग के बच्चे भी हैं तो कम से कम आपको रोटोग्रेव्योर जो है, ग्रेव्योर यानी कि आपको इंटेग्लियो प्रोसेस से होता है, इसका टेक्निकल इंटेग्लियो प्रोसेस है। तो अगर हम लेटर प्रेस की बात करें, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कि हम ये प्रोसेस में हम कहाँ चले गए। थोड़ी सी जानकारी होगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों ने कभी कभी आपने वो देखा होगा, की चेन देखा होगा, उसमें गोल्डन कलर की जो है नाम लिखा होता है, मेलों में या कहीं पे भी आपने देखा है गोल्डन कलर का? वो हीट प्रोसेस से प्रिंट होता है। ये सब आपके जीवन में, आप छोटे से लेके बड़े तक अगर आप जाते हैं तो ये सारे प्रोसेस आपको जो है दिखते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है। मैं आपको बीच में कुछ चीजें दिखलाने के बाद कोशिश करूंगा कि मैं अपने काम के ऊपर भी चर्चा करूं। दरअसल एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, ये दुनिया बहुत ही ब्रॉड है और आगे अनवरत चलती रहेगी। आप सब
जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर ये चीजों को महसूस करते हैं अपने पेंटिंग की दुनिया में भी बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ काम दिखलाना चाहता हूं जो कि अलग अलग प्रिंटिंग प्रोसेस से हैं, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा। आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा कैमरा चेंज करता हूं इसमें। चलिए इसी में करते हैं। ये आपको दिख रहा है? जी सर। आपको प्लास्टिक की ऐसे बहुत से गांव में भी दिख जाते हैं। जी जी। ठीक है, ये छोटे छोटे हैं जो कि आपको अमूमन आपको गांव में या फिर आपको शहरों में ये दिखेंगे। इसके पीछे में आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल दिखेगा। ये सब जो प्रिंट मेकिंग का प्रोसेस होता है उससे ये प्रिंट होता है। जनरली बहुत से चीजें ऐसे होती हैं, जैसे कि अगर आप कोशिश करें, बेटा मेरी वीडियो सही आ रही है क्या सुनील जी? यस सर। सही, एकदम यस सही है सर, सर, बहुत एकदम अच्छे से आ रही है, वॉइस भी बहुत अच्छे से आ रही है। अच्छा ठीक है, मेरे पास पॉज होके आ रहा, थोड़ा सा रुक के आ रहा, कोई बात नहीं। तो ये जो है प्रिंटिंग प्रोसेस, अब आपने बहुत पहले देखा होगा कि लेटर प्रेस प्रिंटिंग जो होती थी वो राउंड में होता था, उसमें छोटे छोटे हम लोग क्या करते थे, ब्लॉक से प्रिंट करते थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास आपको दिखेगा ये छोटा सा प्रोसेस था लेटर प्रेस में जिसको प्रिंट करते थे, और एक एक छोटे छोटे ये जिंक और की वो जो है छोटे छोटे से लोहे के बने हुए होते हैं जस्ते के, इसको हम जो है अरेंज करते थे, फिर उसको बहुत हैवी होता था। लेटर प्रेस प्रिंटिंग आज से अब ये आउट ऑफ डेट हो गया है, लेकिन कहीं कहीं पे जब हम इसको यूज करते हैं पेपरों के ऊपर में उभार के लिए तो अभी भी यूज होता है। ठीक है, कुछ चीजें हमारी मॉडर्न जितनी भी चीजें हैं वो भी आती हैं, लेकिन आइसोलेट होते होते भी, अब जैसे लिथो प्रेस है, लिथो प्रेस से हम लोग लिथो प्रिंटिंग करते हैं। लिथो में क्या होता था, बुक्स वगैरह छपती थी। आज से बहुत पहले जब हमारा स्टार्टिंग का था तब उस समय प्रिंटिंग होती थी। धीमे धीमे डेवलपमेंट होती गई। अब आज 3D प्रिंटिंग, होलोग्राफिक प्रिंट आपको दिख रहे हैं कि आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे लाइफ में ऐसी चेंज हो रही हैं। साइंस और आर्ट, ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अगर हम समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें हमें कैसे कैसे हमारी दुनिया से जुड़ती चली जाती हैं। मैं आपको कुछ काम दिखलाना चाहता हूं। आपसे पूछूंगा कि ये मेरी ही बनाई हुई है, बहुत पहले का। यस सर। ये किस प्रोसेस से छपा होगा? ऑफसेट से सर। पेपर पे है। मैं आपको, चूंकि आप लोग को सामान्यता हो सकता है कि दिक्कत आए, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये पेपर पे छपा हुआ है, ऑफसेट प्रिंटिंग। ध्यान से आपको, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑफसेट प्रिंटिंग है। ऑफसेट का मतलब होता है ऑफसेट, सीधा होकर उल्टा होकर फिर सीधा छपना। ऑफसेट का अगर देखेंगे ना, ऑफसेट, ये इसी में लिखा हुआ है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं ना कि हम अपने जीवन में हिंदी में भी देखें और इंग्लिश में भी देखें तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, और सारी डिजाइन मेरे पास बहुत से हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट नोटिस था, उसके बाद मैं आप लोग के पास आ गया। ये सारी पैकेजिंग हमारी खुद की बनाई हुई है। ये डिजाइन है, बुक मार्क है, ऑफसेट का है ये। और इसके पहले हमने जो दिखाया था वो भी हमारा जो है बनाया हुआ था। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि जो ऑफसेट है हमारे डेली लाइफ में, ऑफसेट अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर भी हमारे पास आता है। अब न्यूज़पेपर और मैगजीन ये दोनों हमारे पास आते हैं। न्यूज़पेपर भी ऑफसेट से छपता है, लेकिन वेब ऑफसेट के थ्रू छपता है। वेब ऑफसेट का मतलब अगर आप देखें तो उसमें रील लगी होती है।
ऑफसेट में ही रील लगी होती है और वो बहुत लंबा, उसको हर कलर में मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है, सियान, ये सारे कलर से होते हुए वो जो है लास्ट में जाके कटिंग होके निकलता है और कटिंग होके निकलती है। तो वहां पर आप ये देखेंगे कि जो हमारी शीट फेड ऑफसेट और ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क न होते हुए भी ऑफसेट हमारी जिंदगी में जुड़ा हुआ, आपसे ऑफसेट निकल ही नहीं सकता है। आप कहीं भी जाएं आपको ऑफसेट के प्रिंट मिलेंगे ही मिलेंगे, रैपर्स मिलेंगे, पैकेजिंग मिलेंगी, आपको बक्सा मिलेगा, डब्बा मिलेगा, आपको दवा की जितनी भी डब्बे हैं वो मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके जीवन में ये सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। आप आर्ट और ड्राइंग और इसको जो है एडवर्टाइजिंग को कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते हैं, ये आपके जीवन में एक अलग प्रोसेस है। फिर एक मैं आपको बताना चाहूंगा, अब डेली रूटीन में आपने ये भी आटा आपने देखा होगा, आटा का ये है पैकेट। इस प्रोसेस को करने में अगर आप देखें तो कम से कम 8 लेयर, 8-9 प्रकार के सिलेंडर यूज होते हैं और उसके बाद ये प्रिंटिंग होती है। टेक्निकली अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग तरीके से होते हुए ये प्रिंटिंग होती है और तब जाके आपको एक लेयर में, मतलब कि एक प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के ऊपर ये प्रिंट होके आपको मिलता है। सिलेंडर पे होता है, जो प्रिंट में होता है कि एक आलू के ऊपर, हम आपको ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं, आलू के ऊपर आप गड्ढे से नाम लिखते हैं अपना, ठीक है, वो हो गया इंटेग्लियो। अगर आलू में आपने ए लिखा, उसके अगल बगल आपने एरिया निकाल दिया, जो लिखा हुआ है उभरा हुआ, वो आपका जो है रिलीफ हो गया, ठीक है, वो हो गया लेटर प्रेस। और अगर आपने किसी पेपर के ऊपर एक स्टेंसिल काट के पेपर को निकाल दिया, खाली जगह हो गया, उसको क्या कहेंगे? कभी आपने स्टेंसिल से प्रिंट किया है कि कोई पेपर को कटिंग किया और उस पे हमने जो है स्पंज से ठप्पा मार के कभी हाँ प्रिंट सर, लिया है? किया है। कभी किसी ने लिया है? किया है, हाँ सर, किया सर, है, सर। वेरी गुड, वेरी सर गुड। पेपर पर नहीं सर, ये पॉलिथीन से हमारा तो आ किया है। जाता है किस पे किया है? सर वो जो मतलब A3 साइज चीज होती है ना, मतलब लेमिनेशन वाली, उस हाँ पे भी हाँ किया है सर मैंने, हाँ, स्टेंसिल बनाकर सर। बिल्कुल। मैं पेपर को कटिंग करने की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर हाँ आप हाँ कोई पेपर ले लें, ये पेपर पे आपने ए काटा और इसमें जो ए लिखा हुआ है उसको निकाल दिया, तो ए का जो खाली पार्ट है वो आप जो है यूज करेंगे खाली वाले पार्ट को, तो आप स्क्रीन प्रिंटिंग उसमें हमारा आ जाता है, ठीक है। बड़ा छोटा छोटा चीज है, आपको सिंपल एक जो है हाँ, ठीक है सर। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास कोई मटेरियल होता तो मैं समझा लेता। तो आर पार, यानी कि कपड़े से आर पार जो हो रहा है वो आपका सरफेस प्रिंटिंग कहलाता है। और आपका लिथो जो है वो अगर आप देखें तो लिथो में क्या होता है कि आपका पूरा एक सरफेस प्लेन होता है, उस प्लेन पे ही जो है ऑयल और पानी दोनों से मिलकर प्रिंटिंग होती है, सरफेस एक है। तो ये सारी चीजें प्रिंटिंग का जो है बहुत ही माइन्यूटली तरीके से हम जो है उसको करते हैं, जहां पर प्रिंट हो जाता है। और ये दुनिया थोड़ी सी है, लेकिन अगर आप में से कोई भी हिम्मत करे तो ये बहुत अच्छी चीजें कर लेता है और आपको अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा सा जो है एक इसमें शुभम मैम, इसमें हम सर आप होस्ट अटैच कैन कर यू सकते कैन हैं जो शेयर, हमारे हाँ वर्क में। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं सर। शेयर स्क्रीन किस साइड में है मैं, प्लीज? हाँ दिख रहा है, ठीक है, ओके। स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है। यस ठीक, ठीक।
वाह सर, हम जानते थे कि हमें कुछ एस्टॉनिशिंग देखने को मिलने वाला है। बहुत सुंदर है, एकदम परफेक्शन के साथ। ओके। हमें सिर्फ आर्टवर्क्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। फिर से नेट हो गई। ठीक है, सॉरी, ये थोड़ी सी अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये फोटोग्राफी है, ये पेंटिंग है, मैंने शिमला में बनाई थी, रिफ्रेशर कोर्स के दौरान ही बनाई थी। आई कैन रिकॉल। आपके साथ में था कि नहीं मैम? आप मेरे आपके साथ टाइम थे। पे ये हाँ थे आपके आप। टाइम पे था? जी, हम लोग साथ में थे। ओके, ठीक ठीक, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, 2008 वाला ही है, नहीं 2012 का लग रहा है, ये नहीं नहीं, मैं भूल गया। 2008 वाला ही है। 8 वाला है ना? वाह, हाँ, आपको शिमला। याद है, ठीक है। ये लोगो टाइप है जो कि हमने बनाया था गमाडा का। ये बनारस की फोटोग्राफी है, मस्त एक व्यक्ति जो है अपना जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो बनारसीपन इनमें दिखाई देगा। राइट सर। ये फोटोग्राफी ही है, ये एक मैंने वर्क किया था उसका है, इसको बाद में मैंने बना दिया था। बनारस में ही बच्चे के साथ में एक अंग्रेज ने अपना फोटोग्राफी, इसमें मेरा मिक्स सारा काम है। ये मेरी बेटी का ही फोटोग्राफ है, ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गया, ये हाँ। ये मैं दिखा रहा था आप लोग को।
अगर आप मोबाइल को अपना हथियार समझें और मोबाइल से ऐसी फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप कभी भी करें, और मेरी उपयोगिता होती है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा मुश्किल से ये कितने एरिया में है, 4 बाई 4 इंच या 6 बाई 6 इंच के एरिया में ये फोटोग्राफी हुई है। और कुछ कंकड़ है, कुछ पत्थर है, और ये जो आपको नीचे रेड वाला दिख रहा है ये कैंची है। मैं आप लोग को जागृत करना चाहता हूं कि आप अपनी मोबाइल से ऐसी फोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी। मैं आपको जो दिखा रहा हूं उसमें अप्लाइड आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग सब मिक्स है। अब आप ये देखिए, कोरोना काल में बहुत से लोग अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी जगह, बॉम्बे से बिहार, उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो रहे थे। तो ये मैंने एक फोटोग्राफी की कि पूरी इंडिया को जो है हमने एक रोटी के लिए दिखलाया कि रोटी के लिए लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। प्रवासी मजदूर के ऊपर हमने ये फोटोग्राफी की। अब छोटे से एरिया, मतलब ज्यादा नहीं है ये बड़ा, आप सबके लिए मजेदार बात है कि अब आप इसमें एक आपको फेस दिखाई दे रहा है, ये मुश्किल से 1-1.5 इंच का होगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, छोटी सी कोशिश है, आप सब कर सकते हैं। मैं आप लोग को दरअसल जगाना चाहता हूं कि आप कैसे अपने आप को कर सकते हैं। ये मेरा स्कल्पचर था, उसको हमने जो है कोविड के टाइम पे पिछले साल ही कि लोग इतने डरे थे कि अपनी फैमिली में अगर किसी को कोविड हो जाए तो उससे बात करने से भी कतराते थे, उसके ऊपर हमने ये फोटोग्राफी की। इसी में प्रवासी मजदूर का ये एक फोटोग्राफ ये भी है। कुछ नहीं है, बड़ा छोटा सा है, सिर्फ मोबाइल फोन से, सिंपल मोबाइल फोन से। ये मेरी एक ड्राइंग है, ये कैनवास के ऊपर हमने पेंसिल ड्राइंग की थी। ये कैनवास के ऊपर ही ड्राइंग किया हुआ है। कुछ रिपीटेड आ सकते हैं क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी। ये एक सुबह में मैंने, जब मैं छोटा था और क्लास 8th में था, जी सर। 8th में था, तो उस समय हमने ये जो है बनाया था, और मुझे ये नहीं पता था कि मेरा भविष्य जो है फाइन आर्ट्स होगा, मुझे नहीं पता था। तो कोई बात नहीं, और लेकिन वो इसको पहले बनाने से के ही बाद, डेस्टिन्ड था कि आपका भविष्य फाइन आर्ट्स ही होगा। ये देखिए आपने इतना अच्छा हाँ बनाया क्लास 8th में, बहुत बढ़िया। हाँ, और डिसेक्शन पहले बॉक्स की का जो वीडियोस बहुत वो होता था ना, नाइस थी। हाँ, इसके ये पहले की मेरे वीडियोस पास आज देखिए। भी है। जो मोमबत्ती के स्टैंड नहीं बनाते हैं, वो उनसे मैंने ये पत्थर लेके, सॉफ्ट स्टोन है ये, उससे बनाया था। वाह। ये जब कॉलेज में पढ़ता तभी का जो है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैंने बनाया था। जो बच्चे हैं उनको जो है थोड़ा सा जो है ये अच्छा, अब ये मजेदार है। दरअसल होता क्या है कि चैलेंज लेने की आदत मेरे अंदर बहुत है। मैं सभी को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं सर थोड़ा सा लेटर्स इसको बने इनलार्ज हुए। कर रहा हूँ। हाँ सर, देख लिए थे अब मैंने। ये अभी हमने आपको एक छोटा सा दिखाया था लेटर ना, अपने हाथ में, हाँ हाँ सर। जो एक छोटा सा लेटर दिखाया था, हाँ सर, हाँ। हाँ, उसी लेटर में इंक लगा के ठप्पा मार मार के ये बनाया गया, जैसे स्टेपनिंग करते हैं ना हाँ आप हाँ लोग, पेन से एक पेन ठोक ठोक के बनाते हैं, वैसे ये बनाया हुआ है। सर इसमें अब वाह आप के ये साथ सोचिए और कि क्या कहें? ग्रेट वर्क सर। इसमें तो कह रहे हैं वाह के साथ और क्या कहें? क्लैपिंग। बहुत बढ़िया सर। और नहीं सर। ये कॉलेज टाइम पे हो क्या रहा था कि मैं लेटर से सीधा सीधा जैसे टाइपराइटर होता वैसे फेस बनाना चाह रहा था, नहीं बना, तो मजबूरी में फिर हमने इसको किया, और ये वहां पर उस साल बच्चों को सर्टिफिकेट में ये दिया गया है।
ये सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। मैं आज कॉलेज से ना सारा पिटारा उठा के ले आया हूँ आपके रिक्वेस्ट पे। थैंक यू नहीं सर, सर। बहुत कुछ है। ये फोटो और मेरे पास यहाँ पे पूरा पिटारा बहुत बड़ा सा है, लेकिन दिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो हो सका। और ये बड़ी मुश्किल से मैंने अभी 4 बजे करीब में कुछ फोटोग्राफ हमने संभाल लिया, वो मैं दिखा रहा हूँ। बढ़िया सर। ये ड्राइंग ही है किसी का। ये कॉलेज के टाइम का काम है, और छन्नी होता है आटे वाली छन्नी, और टूथब्रश उससे बना हुआ है। ओहो। सर अब हमें ढूंढना पड़ेगा इसमें छन्नी और टूथब्रश कहाँ है। कैसे यूज किया गया अब उसका। आप ये देखिए कि ये और ईयर भी बता देता हूँ मैं। इसको बनाया होगा 99 नहीं सॉरी 87 88 It's very 89 detailing. 89 के लगभग का 89 के लगभग का बना है। सन भी आप लोग को, कई लोग को तो याद होगा, पैदा भी नहीं हुए होंगे। नहीं सर, मेरा जन्म भी 88 में ही है। देवेंद्र अच्छा, अभी भी छोटे तो बच्चे। ये तो उस समय ये बना। मैं आज अभी अपने सारे बच्चों को बोलता हूँ ना कि आप इसको देखो। अब जैसे ये है, ये बहुत बढ़िया सर। ब्लैक पेन से राउंड 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 करके ये जो है पूरा ये बना था। ये भी कॉलेज के टाइम का ही है। सर इसे भी जूम करके दिखाइए। सर इसे बनाने में आपको अच्छा। कितना टाइम लगा था? काफी समय लगा होगा सर इसे तो। टाइम का तो नहीं, ये कॉलेज के असाइनमेंट हैं, ये समय पे देने होते हैं। लाइन्स। नहीं फिर भी सर इसको बनाने में लगभग कितना टाइम लगा होगा? मुझे लगता है कि टाइम का तो लगातार हम लोग काम नहीं करते ना, जैसे कॉलेज का कुछ काम ये कर लिए वो कर लिए, तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो 10 से 15 दिन में बन जाता है। लेकिन Okay, पूरा हाँ, फुल टाइम टाइम दो तो फिर लगता है जल्दी सर बनेगा। pointless लेकिन painting में। इसमें ये जो ब्लैक करना है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है, जी जी। बस क्योंकि ये आप इसमें सवाल सर कितने मैंने असंख्य लाइन इसके अंदर जाते हैं जो डार्क करना है। सॉरी राइट सर। सर मैंने इसलिए पूछा कि जब ऐसा कुछ भी क्रिएटिव करने की कोशिश करें तो हमारा धैर्य बीच में ही जवाब दे जाता है और फिर अक्सर नहीं, छोड़ धैर्य देते तो बहुत जरूरी है। तो ये वही चीज तो मैं इसीलिए धैर्य का कितना टाइम चाहिए था खुद मैं को आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा। सभी को देखो, आप लोग पीएचडी कर रहे हो, अगर आप ये ठान लो कि हमें ये करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि 100% आपको सफलता मिलेगी। और असंभव शब्द, जब मैं पढ़ता था, मेरे पिताजी का ये कहना था कि असंभव शब्द मूर्खों के डिक्शनरी में मिलता है। ये बात मेरे दिल में बैठ गई, और आज भी मैं स्कल्पचर का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं अप्लाइड आर्ट का टीचर हूं, लेकिन मैंने चंडीगढ़ में करीब 5.5 बाई 7 फीट का एक स्कल्पचर का पोर्ट्रेट बना के यहाँ टैगोर थिएटर में लगाया हूँ। वाह सर। सिर्फ तो उसका फोटो दिखाएंगे? असंभव को संभव करने का। उसका फोटो बाद में भी दिखाते हैं, अभी इसी पे दिखा देता हूँ। उसमें व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा। अच्छा सर, बाद में देखेंगे। ये मेरा उसी, हाँ ये लास्ट में दिखाते हैं। ये मेरा उसी टाइम पे मसाले का एक ये हमने बनाया था, ये ऑफसेट का। इसमें आप देखेंगे तो मेरा यहाँ पे नाम भी दिखाएगा, इस साइड में आपको दिख रहा होगा, जी सर। फोटो एंड डिजाइन नाम दिख रहा होगा। जी जी जी। और ये मॉडल भी मैंने बहुत एक परिचित है, ये बॉम्बे में है। अब ये उस समय जो है जिनका फोटो खींचा था, आज के डेट में वो बॉम्बे में। ये कुछ मॉडलिंग है, कॉलेज के टाइम का ही है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, जो मैंने किया था। ये क्विक स्पीड में पेंटिंग करने का एक दिन शौक हुआ था, तो मैंने जो है छोटे से उसमें किया था। आपके पास जैसे कलर है, और अगर आप उसको फ्लो में कुछ करना चाहते हैं, तो चूंकि मैं पेंटिंग का नहीं हूँ, अप्लाइड आर्ट का हूँ, तो थोड़ा सा लगता है कि मैं भी कुछ करूँ। सर आप आप लोग ड्राइंग और पेंटिंग के हैं?
आप पेंटिंग के नहीं है तब मुझे आपने इतना अच्छा काम किया है स्केचिंग और पेंटिंग और स्कल्पचर तक में। सो आप तो मल्टी इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सबके अंदर ना धैर्य होना चाहिए, और अपने मन में ये कभी भी ना करें कि हमें नहीं कर पाएंगे। अगर खराब होता है ना, कहिए कि अगली बार हम जरूर पक्का अच्छा करेंगे, और आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, ये गारंटी आपके साथ में है। ये फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी हमने की थी पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसी के टाइम का है। आपको इसमें मेरे काम में सभी कुछ मिल जाएगा, मतलब कि फोटोग्राफी, पेंटिंग, ड्राइंग, सब कुछ। मैंने फिल्म भी एक बनाई कोविड के टाइम पे, ओके सर। और उसमें भी किसी ने चैलेंज कर दिया था। ये मेरे स्टूडेंट ही हैं, 2012 के। बीच वाला स्टूडेंट है, बाकी सब पीयू के स्टूडेंट हैं। ये लोग पीयू के फैशन के स्टूडेंट्स हैं। ओके सर। ये फोटोग्राफी है विंध्याचल का। ये फिर से एक बच्चे का है, ये फोटोग्राफ आपने देख रखा है। ये कागज के कोन से बनाया था, और मैंने कॉलेज में बच्चों को बोला था कि आप कुछ क्रिएटिव फोटोग्राफी करो, और बच्चे जो है हल्के में ले रहे थे, वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे असाइनमेंट के लिए। मैंने कहा कि कुछ करना है, उन्होंने किया नहीं, तो उनको समझाने के लिए मैंने खुद फोटोग्राफी की, और इस पे मुझे अवार्ड मिला पंजाब ललित कला अकादमी का। Congratulations, sir. हम लोग तो इसे पेंटिंग समझ रहे थे सर अभी तक, मतलब मैं समझ रही थी। सच में सर। नहीं, ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ है, बहुत बढ़िया। फोटोग्राफ है। आप सोचिए कि इस तरीके से कुछ क्रिएटिव करके भी आप पेंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राफिक प्रिंट मेकिंग के जो बच्चे हैं वो चाहे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब उसी प्रोसेस में ये भी है, बहुत आसान है। मतलब आप सोचिए कि कितने आसानी से हम कुछ क्रिएटिव कर लेते हैं। देखिए लाइट और उसका हमें प्रेजेंटेशन है, लेकिन कितना सुंदर लगेगा ये आपको सोचना है। उसी में ये तीसरा काम है। ये साउथ में जो है एग्जीबिट भी हुआ था ये वर्क। रियली अमेजिंग वर्क सर। ये तो फिर मनाली का ही फोटोग्राफ है। ये चंडीगढ़ का फोटोग्राफ है, लेकिन बनारस जैसा लगता है थोड़ा सा। यस सर। इसमें ये बीच का टावर आज के डेट में जल के खत्म हो गया, अब नहीं है। हाँ, ये है एक मजेदार। ये मेरे कॉलेज के टाइम का ही है, आप लोग को शायद अच्छा लगेगा। अब इसमें अलग अलग तरीके से पेनिंग का काम है, पेन और इंक का। इसमें हमने डिस्टॉर्शन को दिखाया, मतलब कि एक तरीके से जो परखनली शिशु होता है, परखनली शिशु को हम पैदा तो करते हैं, लेकिन हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं बम से। आज के डेट में देखा जाए तो हर समय एक हो रहा है कि बच्चे पैदा तो हो रहे हैं, लेकिन एक बम, जैसे हिरोशिमा का बम गिरा था और सारा तबाह हो गया था, तो उसी में हमने ध्यान से ये बच्चे को और इसको बनाया था। ये पेनिंग ड्राइंग है। ये फोटोग्राफ है। ये मैंने वाटर कलर में लैंडस्केप बनाने जा रहा था, और तभी अखबार में आया कि पोप जॉन पॉल नहीं रहे, तो लैंडस्केप मेरा कन्वर्ट हो गया इनके ऊपर। मैंने ये फिर बना दिया। बहुत बढ़िया है सर। ये मेरे लाइफ का पहला पोर्ट्रेट है। लखनऊ में वो डायरेक्टर थे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज के। ऑयल कलर में बनाया था, मैंने पहली बार ऑयल कलर में बनाया था, डरते डरते बनाया था।
सर और बहुत ये जो फोटोग्राफ उन्होंने दिया था, जो इस्तेमाल किया है और परफेक्शन मिक्सिंग एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। सर पहली बार इतना अच्छा और बनाया इसमें है ये कि जो कुर्ता है ना, ये कुर्ता मेरा खुद का कुर्ता मतलब जो था उससे मैंने अपना आइडिया लेके बनाया था। ये बच्चे ने तो शर्ट पहनी थी। तो पोर्ट्रेट में क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, ये आपने दिखा दिया। पोर्ट्रेट में तो करते ही करते हैं सारे लोग, क्योंकि सर इसके गाल और सुंदरता बनाने के लिए रियलिस्टिक है कि फोटोग्राफ जैसा टच आ रहा है। तो एक्चुअली वी आर एंजॉयिंग बैकग्राउंड द और जर्नी। वो जो एक आर्टिस्ट की जर्नी होती है ना, वो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। नहीं, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने अभी गलती से क्या हुआ ना, मेरा एक लैपटॉप उसकी बैटरी खराब है। शिफ्टिंग के चक्कर में मेरा हार्ड डिस्क गायब है। उस चक्कर में मैंने किसी तरीके से कोशिश करके आप लोग को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जो मिल गया है वही मैं दिखा रहा हूँ। सर थोड़ा बहुत ही हमारे ये लिए मैंने बहुत है। बस ये कि आप लोग उद्वेलित हो, सीखें काम करने के लिए, क्योंकि पीएचडी के दौरान होता क्या है ना कि हमें मीडियम्स बहुत अलग अलग होते हैं। और मैं कभी भी, आप अगर पूछना चाहेंगे फोन से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं हमेशा आपको मदद करूंगा। सबसे अच्छी बात ये है। थैंक यू सो हाँ, मच। धैर्य रखना आपके अंदर में जरूरी है। तो अभी से मोटिवेटेड महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा चलिए, मैं आपको एक मोटिवेशनल बात बताता हूँ। जब मैं बनारस में था तो बनारस में मेरे पास साधन नहीं था। रेलवे क्वार्टर से हम लोग शिफ्ट हुए थे और मेरी एजेंसी चलती थी। अब आप सोचिए कि जो बीएफए कंप्लीट कर रहा था उसने उसी टाइम पे डिजाइन का काम शुरू कर दिया मार्केट में। मेरा कॉन्फिडेंस ये था कि मैं अपना काम करूंगा, मैं किसी एजेंसी में नहीं जाऊंगा। मैंने शुरू कर दिया और मास्टर डिग्री के बाद मैंने एजेंसी भी स्टार्ट कर दी। उसी समय मेरे एक मित्र का छोटा भाई, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे यहाँ पे 2 साल काम किया और इस समय टॉप की मैगजीन कंपनी में सिर्फ वो 8th पास है, कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, और आज वो टॉप का आर्टिस्ट है इस समय एट प्रेजेंट। मैं मैगजीन का नाम भी नहीं बताना चाहूंगा। और आप कल्पना करिए कि पढ़ाई लिखाई से जरूरी नहीं होता है, सिर्फ आपका लगन होता है। और टॉप का आर्टिस्ट है वो। फेसबुक पे आप कभी भी उसका देख सकते हैं। इट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी। ये आ गया जब साउथ में सुनामी आया था। आप लोगों ने सुना होगा, नाम सुना होगा। यस ये हाँ, तो सुनामी के टाइम पे जो समुद्र का पूरा एक वेव आया और उसके बाद जो दर्द तकलीफ थी उसको मैंने ये दिखाया। लेकिन इसको दिखाने के बाद ये पता चला कि लोग ऐसी पेंटिंग कोई खरीदता नहीं है। दुख वाली चीजें नहीं खरीदता है। तो आपको एक नसीहत भी है कि अगर बेचना चाहते हैं तो सुख बेचिएगा, दुख नहीं कोई खरीदेगा। और सही बात भी है कि दुख क्यों परोसा जाए। लेकिन अब ये होता है, आर्टिस्ट जो है रुकता नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात तो कहते ही कहता है। तो ये भी मैंने जो है सुनामी के टाइम पे ये साइज में बताऊं 22-28 जस्ट डबल है ये। बहुत बढ़िया सर। 2 पेपर बड़े बड़े मिला के, मतलब ये 30-40 के लगभग का होगा। ये तो वीडियो आ गया। अगर आप लोग के पास समय है तो मैं ये चला दूं ये, लेकिन हमारा नहीं है ये। बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी है। चला दें? दिखा दीजिए सर। एनिमेशन है, एनआईडी का है एनिमेशन, लेकिन बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा है। नहीं सर, ये देख लीजिए। वो भी देखना है सर। देखना है? देखना है बिल्कुल, क्यों नहीं।
चलिए ठीक है, एंजॉय करिए, बड़ा मजा आएगा, देखिए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आवाज आ रही है? हाँ। सर आवाज नहीं आ रही है हाँ स्क्रीन सर, आ पे। रही है सर, इसमें आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आपकी तो आ रही आवाज है। आ रही है। अभी आ रही है। बहुत बढ़िया। Namaste. 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 Hello, excuse me. Hello, you there? Me? Yes, you. Silence, please. Okay. Respected Ganapatis and my dear Ganapatis. The next event, introduction of Sarvajanik Ganapatis. Gargil soldier from Kaspa Pet, Pune. Mantri Mahoday from Nana Pet, Pune. Kabhi to kabhi
हाँ, फ्रॉम स्टेशन रोड पुणे। मैं देशमुख के घर से, मैं जोशी के घर से, मैं भोसले के घर से, मैं अरे वाह, ढोल वाला गणपति। अरे भाई रुक क्यों गए, बजा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी लोग खो गए एकदम से। Yes, sir. It was very good. सर बाकी बहुत अच्छी थी सर। बहुत अच्छा सर। ये सिर्फ ड्राइंग आप देखें तो अगर सिर्फ पूरे टोटल ड्राइंग पे बना हुआ है Yes, और sir. इंस्पिरेशन बहुत अच्छा देता है। अगर कोशिश करे अगर ड्राइंग से सिर्फ एनिमेशन, मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ कि एनिमेशन बनाने के लिए भी, और वो करते भी हैं, कभी मौका मिला तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि बहुत मजेदार तरीके से वो बनाते हैं। एक ये रह गया था, ये दिखाता हूँ। ये भी ड्राइंग मेरी बनी हुई है और ये सन याद नहीं आ रहा है। इसमें मुझे अवार्ड भी मिला था। ये शायद पंजाब बनारस बैंक का कर रहा है क्या सर? बनारस का इंगित तो कर रहा है, क्योंकि मैं बनारस से हूं तो थोड़ा सा बनारस तो आ ही जाता है,
थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा। हाथ में शिव है, गंगा कपड़े का ये हाँ, लड़की की पूजा पूजा ऐसे करके उसका सब्जेक्ट था और उसमें ये मैंने बनाया था ड्राइंग, पेंसिल ड्राइंग है ये पूरा टोटल। ये कुछ मैंने आप लोग को दिखाए, सारे तो हमारे पास अभी है नहीं, पिटारे में बहुत कुछ है। एक आपको ये दिखाते हैं, हम लोग के कॉलेज में ये टैबलो वगैरह बनता है, जहाँ दिल्ली का जैसे बनता है ना वैसे ही, तो ये भी बना था, लेकिन ये फिर ओके नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो है रह गया फिर काम। चलिए फिर ये तो हमारे पास जितना प्रेजेंटेशन आज के डेट में था मैंने आप लोग को जो है दिखा दिया। सेकंड नंबर पे कुछ अगर सॉरी क्या बोल रहे हैं? नथिंग सर, नथिंग सर, उसी के बारे में था, सॉरी सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हम आप लोग से अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, ताकि आपके मन में अगर कोई चीज है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलिए आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। मैम आ रही है सर, आ रही है? यस सर। सर बिल्कुल क्लियर है वॉइस। वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। चलिए सुनील जी सर आप शुरू करिए। सर मैं ये पूछना चाहता था, जिस तरीके से आपने बताया था कि जो न्यूज़पेपर होता है उसके उसकी प्रिंटिंग होती है वो भी 4 ऑफसेट मशीन से ही होती है, लेकिन सर उसमें उससे पहले उसका निगेटिव बनता है ना सर? और हाँ तब जी वो प्रिंट होता है बिल्कुल तो सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। हाँ दरअसल क्या है कि तो सर उसमें जो पहले जो प्रोसेस चल रहा था, अगर आप पुराने प्रोसेस में जाएंगे ना तो उसकी निगेटिव बनती थी। वो मैं निगेटिव आपको दिखलाता हूँ। आपके पास ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। इसमें क्या है कि सियान, ये जैसे सियान का ये है, निगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, निगेटिव तो नहीं बोलते हैं, ठीक है? इसमें हाँ, 4 वही। अलग अलग कलर के मैजेंटा, ठीक है, येलो और ब्लैक, ऐसे करके जो है ना, आपको पहले ये क्या होता है कि सारा का सारा फिल्म बनती है, ठीक है? पहले निगेटिव बनता है, निगेटिव के बाद पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव के बाद एक जिंक का प्लेट होता है। जिंक की प्लेट के ऊपर, सपोज मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि अगर ये जिंक का प्लेट है, इस जिंक के प्लेट के ऊपर हम इस फिल्म को रख के एक्सपोज करते हैं, लाइट से एक्सपोज करते हैं। तो जैसे ही आपने देखा होगा कि वो पूरा एक्सपोज हो जाता है, फिर उसके बाद एचिंग प्रोसेस होती है। एचिंग प्रोसेस होने के बाद इसको राउंड कर दिया जाता है। राउंड करके इसको फिर हम ऑफसेट मशीन में लगा देते हैं, और इसके साथ में एक पानी का, साथ में एक ब्लैंकेट आपका चलता रहता है, और उसके साथ में इंक का ऊपर में रोलर चलता है, ठीक है? और वो रोलर एक तरीके से प्रिंट में सपोर्ट करता है। सपोज मान लीजिए कि इंक का ये सपोर्ट कर रहा है, इंक इधर से लग रहा है, इधर से पानी का लग रहा है, तो ये क्या होता है कि पूरा का पूरा आपको प्रिंटिंग आपका हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो आपको YouTube पे भी दिख जाएगा कि ऑफसेट मशीन से प्रिंट कैसे होता है। आप सारे लोग लेटर प्रेस,
और ऑफसेट की वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा कि कैसे होता है। चलिए और पूछिए। सर इसमें एल्युमिनियम शीट होती है ना, या फिर जिंक प्लेट? ये एल्युमिनियम का भी होता है, जिंक का भी होता है, अलग अलग होता है। एल्युमिनियम जो होते हैं वो बहुत सस्ते वाले यूज होता है, जो जिंक होता है वो अलग होता है। ओके। देवेंद्र, सुनील जी आपने और कुछ पूछना है सुनील जी? हाँ सर, तो मैं उसमें यही पूछ रहा था कि जो वो रोलर पे मतलब पेपर रोल होता है वो बहुत बड़ा लेंथ उसकी होती है, तो क्या सर ये जो ऑफसेट मशीन होती है ये कई जगह लगाते हैं क्या इसकी? मतलब पेपर तो वो सिंगल होता है ना, कटिंग तो बाद में हो रही होती है। हाँ। पेपर जो जो यूनिट होती है वो अलग अलग डिफरेंट यूनिट होती है, और इसमें जो प्रिंट होता है उसका रोल एक ही होता है, एक ही रोल से वो प्रिंट होके अलग अलग यूनिट होती है। जैसे सबसे पहले सियान हो गया, मैजेंटा हो गया, येलो हो गया, ब्लैक एकदम लास्ट में होता है। तो उससे वो प्रोसेस घूमने के बाद फिर लास्ट में कटिंग होता है। ये करीब कितना आप समझ लिए कि 80 फीट जो है आपका पूरा एरिया ये कवर करता है, जो प्रेस वाला होता है। मेरे पास वीडियो है लेकिन मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा न्यूज़पेपर वाले का। थैंक यू सर। और जो मैगजीन का होता है वो अलग होता है, वो सीट फेड ऑफसेट बोलते हैं। ये जो है वेब ऑफसेट बोलते हैं। वेब इसीलिए बोलते हैं कि जैसे मकड़ जाल होता है ना, मकड़ जाल, इसीलिए ये पूरा चलता रहता है, तो इसलिए वेब ऑफसेट होता है। यस सर। और सर उसको मैगजीन वालों क्या बोलते हैं? सीट होता है ना, जैसे मान लीजिए ये सीट है, पेपर की सीट है ना, ये सीट है, ये कटे हुए होते हैं। और जो आपके रोल होते हैं वो काफी बड़े, मतलब कि आप समझ लीजिए 1 मीटर इतना रोल होता है बड़ा सा। उस रोल में से वो पेपर निकलता रहता है और उसमें से प्रिंट होते हुए फिर लास्ट में वो कट के निकल जाता है। जो सर क्योंकि मैगजीन वाले क्वांटिटी ज्यादा होती है ना न्यूज़पेपर की। सर मैगजीन वाले के प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? जैसे इसको वेब ऑफसेट बोलते हैं, उसको सीट फेड वेब ऑफसेट, सीट फेड ऑफसेट, दोनों प्रोसेस अलग अलग है। ठीक सर। देवेंद्र जी। हाँ सर, मेरे को यही पूछना था। इससे मेरे को, मैंने वुड में और लिनो में वर्क किया है, और मैंने सिल्क स्क्रीन नहीं किया है और नहीं ये किया, फिर भी मेरे को सर बहुत इंटरेस्ट आ रहा है सर फोटोग्राफी में जो आप बता रहे हैं। नहीं देखिए, एक नया मैं आप लोग को आप लोग जितने भी किए हुए हैं, मैं अगर कभी मौका मिले ना तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मीडियम आप और भी इजाद कर सकते हैं। हम लोग सिखाने के लिए क्या करते हैं कि हम लिनो पे करा देते हैं, हम जिंक पे करा देते हैं, लेकिन मीडियम आप और भी इजाद कर सकते हैं। वुडन पे तो होता ही होता है, तो अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन बहुत से हैं। ठीक है, आप कभी प्रैक्टिस अगर करके देखें तो आपको पास ऑप्शन बहुत मिलेंगे। जैसे पेंटिंग में हम एक्सपेरिमेंट तो करते रहते हैं सर, कुछ ना कुछ जो मिल जाता है सर। और सर मैं गांव में पढ़ाता हूं मैं, तो गांव में ये सुविधाएं नहीं होती हैं, तो गांव के बच्चों को क्राफ्टिंग वर्क कराते हैं, तो हमें जो मिलता है ना मटेरियल, उसी से ही करा देते हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं कि कभी भी मटेरियल के लिए आप अगर पेपर भी मिल जाता, अगर पेपर नहीं भी मिलता है तो आप अगर आप चाहें तो आप मिट्टी का एक बेस बना लें। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म मिट्टी का बेस बना लें, उस बेस पे भी आप अगर चाहेंगे तो इंग्रेव करके उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसमें रिलीफ बना सकते हैं, उसमें वो भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत पत्तियां चिपका दीजिए, आप उसके साथ में डंठल चिपका दीजिए, उसके साथ भी प्रिंट ले सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। कभी कभी हम लोग क्या कराते हैं, जैसे बच्चों को स्टार्टिंग में हम प्रिंट मेकिंग का जब ये कराते हैं, दरअसल अब ये ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ है, जो प्रिंट मेकिंग प्रोसेस उससे जुड़ा,
तो मैं सब्जियों से उनको प्रिंट करवाता हूँ। अब सब्जियों को काटेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि नैसर्गिक जो है जो सुंदरता होती है, भिंडी काट दीजिए, आप लौकी काट दीजिए, सबके अंदर में अलग अलग आपको डिजाइन मिलेगा। उसमें कलर लगाइए, स्पंज के ऊपर कलर लगाइए, उसको प्रिंट करिए और उसको भी खूब तरीके से प्रिंट करिए। आप सूरजमुखी का बीज देखे होंगे, जी हाँ सर। सर। सूरजमुखी का बीज कितना खूबसूरत होता है ना? यस सर। तो आप सर। इस चीज को अगर आप कभी, जितनी भी सब्जियां हैं उठा लाइए घर में, पकाने से पहले उसको काटिए, उस पर प्रिंट करिए, देखिए आपको बड़ा मजेदार होगा। एक के बाद आपको डिजाइन इतनी मिलेगी ना कि आपको देख के पागल हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर। हेलो, मैं आप लोग को थोड़ा सा उद्वेलित कर रहा हूँ कि ताकि आप जो है ना काम करें, और कभी भी कोई डिस्कशन करना हो कभी भी आप फोन कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, हाँ पूछिए। सर जैसे पहले प्रिंटिंग मैनुअल काफी हुआ है और अभी जिस तरीके से मशीनीकरण हुआ है और डिजिटल प्रिंट्स लेते हैं, तो इन दोनों के एक्सेप्ट में जो एस्थेटिक सेंस है, जो सुंदरता है, उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? एक मैनुअल प्रिंटिंग हो रहा है और एक जो डिजिटल प्रिंट हो रहा है, चाहे ऑफसेट है या फिर हम कंप्यूटराइज जो भी करते हैं। जैसे मैनुअल में हम ब्लॉक प्रिंटिंग भी देखते हैं, जो कपड़ा डिजाइन रहता है उसमें अनइवननेस एक उसका खुद का एक सुंदरता है, और जैसे हम डिजिटल में बिल्कुल परफेक्शन वहां पे रहते हैं। तो इन दोनों के एक्सेप्ट में आपका क्या विचार रखते हैं सर? देखिए दोनों जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं पे अपने आप में एक आर्ट है। जो अनइवननेस होती है ना, अनइवन का एक अपना है। अगर आप साड़ी अगर प्रिंटिंग को देखें, जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग में ये चीज होता ही होता है कि लास्ट में जाके किनारे पे वो हल्का सा हिलता ही हिलता है, लेकिन अगर हम उसको मशीन से जब करेंगे तो वो नहीं होगा। स्क्रीन प्रिंटिंग में वो चीजें नहीं आ पाती। तो उसकी खूबसूरती तो है। कलर का जो एक क्वालिटी है, अगर आप हम प्रिंट में उसमें लेटर प्रेस में जाते हैं तो अगर आप देखेंगे और ऑफसेट में जाएंगे तो दोनों में फर्क है। उसमें क्या होता है कि हमारे पेपर के ऊपर अगर आप ये हमारा अगर आपको ये दिख रहा है, ये ब्लॉक है। यस सर। ये ब्लॉक है, ठीक है। और ये प्रिंट है, ये मतलब कि लेटर प्रेस की वो है जिससे प्रिंट होता है। अब इसको क्या है कि डायरेक्ट इस पे इंक लग रहा है और इस पे प्रिंट हो रहा है, ये डायरेक्ट प्रोसेस है। लेकिन जब हम ऑफसेट में जाते हैं, ऑफसेट में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो पानी मिल के थोड़ा सा उसका कलर का चेंज हो जाता है। तो सभी में प्रोसेस अलग हो रहे हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी वाइज देखें तो क्वालिटी इंप्रूव भी हो रही है। जो हम पुराने में थे, जब भी हम अगर इसको प्रिंट करते थे, पहले अगर हम इसको प्रिंट करते थे तो इसमें हल्का सा हिलता ही था, क्योंकि 20% लॉस्ट हो जाता था, मटेरियल हमारा खराब हो जाता था। लेकिन आज जो मशीन हमारे पास आई है उसमें क्वांटिटी कम होती जा रही है, क्योंकि डिजिटल आपका कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जितने भी प्रोसेस हैं वो प्रोसेस समय के साथ चेंज होते जा रहे हैं। अब आज के डेट में जो हमारी ये प्रोसेस थी ये भी खत्म हो गई। ये अब क्या होता है, डायरेक्ट प्लेट प्रिंट हो जाता है, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। लेटर प्रेस आउटडेटेड हो गया। अब डायरेक्ट जो है लेटर प्रेस में सिर्फ जहां पर हमें उभार देना हो, अगर किसी पैकेजिंग में अगर आपको देखेंगे तो उभार देना होता है, ठीक है। अब जहां पर आपके पास इस तरीके के जो प्रिंटिंग होती है चॉकलेट वगैरह की, तो इसमें आपका 8 कलर भी हो जाता है, लेकिन इसमें क्वालिटी तो अच्छी होती है। अब इसमें गोल्डन कलर भी है, तो गोल्डन के लिए अलग से लेटर प्रेस वाला प्रिंटिंग चलेगा ही चलेगा। फिर से हमारा लेटर प्रेस यहाँ पे आ जाता है। तो कुछ चीजें आउटडेटेड होती हैं। एस्थेटिक की इसमें बात करें तो कलर, अगर आप जो हमें विजुअल जो दिख रहा है वो तो हमारे पास ये है कि कोई रफ सा होगा, फिर कोई एकदम प्लेन होगा, बढ़िया होगा, वो सारी चीजें अलग है। तो यहाँ पर चीजें तो क्वालिटी में आप अगर बहुत खराब होगा तो आप ही उसको इग्नोर कर देंगे। आप चाहेंगे कि बहुत अच्छी पैकेजिंग वाले में क्वालिटी, ये मान लेते। यस, थैंक यू सर। और कोई पूछना चाहता है?
मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और सर ने हम बहुत अच्छा लोगों मैम, को बहुत अच्छा। जो फोटोग्राफ्स दिखाए और जो वाह मेरे पास बहुत है। मेरे पास इतने ढेर सारे सामान है। दरअसल क्या होता है, जब कॉलेज के टाइम पे मेरी जर्नी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से स्टार्ट होते हुए आर्ट की दुनिया में होते हुए अलग अलग जब भी हम गए तो वो सारे मटेरियल्स हमारे पास है और मैं आप लोग को बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी। नहीं सर, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक आर्टिस्ट की जर्नी को देखा, उसके इमोशंस को फील किया और कैसे वो क्रिएट करता है ये चीज देखी। और ये एक रिसर्चर के लिए जानना बहुत जरूरी है। जब हम सामने सामने मिलते हैं तो ये सारी चीजें मिलना, समझना कि वो उसके साथ जुड़ना जिसको कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो आज हम लोगों ने देखा, ये चीज फील की कि कैसे काम हुआ, बहुत अच्छा लगा। और खास तौर से आपने जो प्रिंट मेकिंग के बारे में बताया और साथ में वो जो एक मूवी, एनिमेटेड मूवी दिखाई, तो कितने सारे मीडियम्स हैं काम करने के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए, और कोई बाउंड्री नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा एक मजेदार एस्पेक्ट था। मुझे लगता है सबने ही इसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। यस मैम। और हम जानते हैं कि सर के पास में बहुत सारा खजाना है, ऑल्दो वो दिखा नहीं पाए, लेकिन हमें मालूम है कि बहुत ज्यादा है। कुल मिला के सर मल्टी टैलेंटेड है सर, बहुत मतलब सारी फील्ड में काम करना सर, ये एक थोड़ा नहीं, मैं आप लोग से एक वचन लेना चाहूंगा कि आप लोग ये आर्ट की दुनिया में देखिए, हम सब क्या होता है ना कि हम पढ़ते समय ये होता है कि हमने ये नहीं पढ़ाई कि ये डिग्री नहीं ली, ऐसा हमारे मन में आता है। लेकिन अगर आप ये भावनाएं बिल्कुल निकाल दें, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कक्षा 8 पास एक ऐसा व्यक्ति आज एकदम शीर्ष पे बैठा हुआ है। आपकी डिग्री और आपका एमए पेंटिंग ये सारी चीजें तो सब किनारे हो जाती है, उसकी लगन देखिए कि वो कुछ करना चाहता तो वो पहुंच गया। तो आप भी जब भी चाहेंगे आप एनिमेशन फिल्म बना सकते हैं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। बस असंभव को जो है आपको डस्टबिन में डालना होगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, असंभव को डस्टबिन में डालना होगा। बहुत बढ़िया सर। सर कहिए, आप लोगों का साथ ही रहा है जो इतना इंस्पायर करता रहा है मुझे कि मैंने हार मानना बंद कर दिया है। मैम मैं तो कहती हूँ कि जब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हो जाए तो सर की एक वर्कशॉप करा दीजिए पोर्ट्रेट की। ऑयल पेंटिंग में इतना सिर्फ पोर्ट्रेट की? सर के पास में क्या कुछ नहीं है, सिर्फ पोर्ट्रेट की। अभी प्रिंट मेकिंग की बात करना शुरू करो तो वहां भी एंडलेस है। नहीं मैम, पोर्ट्रेट की नहीं मैम, आई एम इंटरेस्टिंग इन पोर्ट्रेट की ऑयल नहीं। पेंटिंग एंड पोर्ट्रेट वर्क। सो आपने वो आर्ट वर्क नहीं देखा है, मैंने देखा है। सर ने वो क्रिएट किया जो शिमला में, वो कैसे हुआ था मेरे सामने सब देखा है मैंने, और उसकी सॉफ्टनेस वो आज तक हम नहीं भूले। मैम एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इतने मतलब हमारे पास थॉट्स तो होते हैं निश्चित तौर पे बहुत सारे, पर उन थॉट्स को हमें ये भी पता है कि हमारे पास इतने सारे माध्यम है, मीडियम्स हैं, पर जब हम उनमें करने चलते हैं तो उतनी सफाई से, उतने परफेक्शन के साथ नहीं हो पाता। जैसे कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ नहीं हो रहा, वाटर नहीं हो रहा, ऑयल हो रहा है तो ये नहीं, मतलब वो परफेक्शन आ पाना ये बहुत बड़ी चीज है हर माध्यम में। शुभम मैम। जी सर। मैं जब शिमला गया तो शिमला के बाद मैं बनारस भी गया। बनारस के बाद एक रिफ्रेशर मैंने जामिया में भी किया था। जी जी। तो वहां पर मैंने जो मुस्लिम एक ब्यूटी होती है, जो मुस्लिम एक वो होता है, वो भी मैंने किया था। तो वो भी पेंटिंग में वो करी थी। मतलब मुझे दरअसल क्या होता है कि सबके साथ मिलने में एक जो मजा है, अब जैसे मुस्लिम का एक अलग सुंदरता है, उसको मैंने वहां पे बनाया। बहुत बढ़िया सर। वो मैंने दिखाया नहीं है मुझे। हाँ। सर दिखाइएगा। अभी तो कल आपका क्लास रहेगा तो हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, आप क्या सारी ये जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली सर वो डिफरेंट मीडियम बात तो है ही, एक्चुअली बात तो एक्सप्रेशन की है ना, कि कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब एक्सप्रेशंस जो है वो बाउंडलेस है, वो उसके लिए मीडियम जो है वो बार नहीं होना चाहिए। ये बात हम लोगों ने आज वाकई प्रैक्टिकली देख ली।
जैसे हम बोलते हैं ना कि सर प्रोफेसर है अप्लाइड आर्ट्स में, तो अप्लाई कैसे कर रहे हैं आप उस चीज को, ये सर ने आज हम लोगों को प्रैक्टिकली दिखा दिया कि मीडियम्स को छोड़ दो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पेंटिंग के हैं और हम सिर्फ पेंटिंग करेंगे, तो दैट मीन्स यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ, आप खुद को रोक रहे हैं। मैम हम ये कहना चाहते थे कि सर पोर्ट्रेट तो हम करते ही हैं और चीजें भी कर लेते हैं, स्कल्पचर भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ वो चीज सीखनी है जो हमसे रह गई, जो हम नहीं सीख पाए। बहुत समय है अभी देवेंद्र जी, आप सीखिए, बहुत समय है। ऐसा है, अगर आप अपने आप में बचपना महसूस करेंगे, ठीक है, तो आप जरूर सीखेंगे। बड़े मत बनिए, छोटे रहिए, सीखते जाएंगे। बिल्कुल सर। सर Yes. आपने ऑफसेट जितना अच्छे से बताया, मजा आ गया, अच्छा लगा सर वाकई। मैंने बहुत कम जगह पे, दरअसल क्या है, मेरे पास सारी मटेरियल अगर और होती तो मैं और अच्छे से क्लियर कर देता, लेकिन जो है जितना समझा सकता था, क्योंकि आप लोग से रूबरू होना महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छी बात ये है। सर एक चीज नोटिस और पर मुझे सर आपने पूछनी थी। बिना प्रिपरेशन के इतना अच्छे से बताया है सबको, वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली बच्चे तो अभी उनकी क्वेरीज तो अनस्टॉपेबल है, वो आपसे पूछते ही रहेंगे क्योंकि उनको कुछ नहीं, नया कोई बात नहीं है, अगर आप लोग तैयार कर लें, कल के लिए पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम फिर आपको मिलेंगे, कोई ना कोई सब्जेक्ट नया उठाते हैं और उस पे बातचीत करेंगे, कुछ चीजें आपको और भी दिखाएंगे, ठीक है, तो फिर हम इसको जो है कंप्लीट करते हैं। और आप लोग को अपने मन में कोई क्वेश्चंस आता है तो आप जरूर पूछिए, क्योंकि जरूरी है पूछना। और पीएचडी में आपको रिसर्च, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं जब 95 में हमने रजिस्ट्रेशन की थी पीएचडी, अब आप कल्पना नहीं करेंगे 95 कब का है, ठीक है। सबमिशन मेरा 2004 में हुआ, क्योंकि जॉब भी मेरी लग गई थी, फिर उसके बाद वो, तो उस समय भी हमने रिसर्च किया था और मार्केट में जा जाके पूरा रिसर्च किया था। तो वो चीज आज के डेट में हो रही है, और मैं उसको बहुत पहले किया था, और 3 अलग अलग सब्जेक्ट में किया, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और जर्नलिज्म, तीनों चीजों को कंबाइंड करके हमने जो है रिसर्च किया था। वाह, तो एक्चुअली एप्लीकेशन जो पार्ट है आपका, कि एप्लीकेशन क्या है आर्ट की, एक तो हम लोग जो बात करते हैं कि आर्ट फॉर आर्ट से, उसके बाद में फिर दूसरी बात आती है कि आर्ट फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में उसकी यूटिलिटी या फिर डेकोरेशन या जो भी चीज है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि कैसे उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं और एक ब्यूटीफुल एक चीज भी क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो डेकोरेटिव हो, जैसा आपने हमें अपने स्केचेस दिखाए, तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगी। आई रियली अप्रिशिएट कि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें दिखी जाएं, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो तो हम कहेंगे ही कहेंगे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। जब अप्लाइड आर्ट के प्रोफेसर सर बता रहे हैं कि हमें बेचने की सब कुछ जरूरत नहीं है, कंटेंट होना चाहिए आपके पास में, आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए, तो ये मतलब आपने बहुत कुछ, इतने लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो किताबों में नहीं है, जो आपको सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल आर्टिस्ट या प्रोफेसर आनंद शर्मा ही बता सकते हैं। ये उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे पास जब भी अगर आप बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं पे ना रुकने वाली बात तो होगी ही नहीं, बहुत सी चीजें हैं। तो आपको आपके सब्जेक्ट में आप जितना रिसर्च कर सकते हैं करें, एंजॉय करें, लेकिन खुश रहना पड़ेगा। एक चीज, अगर टेंशन है तो मुझे लगता है शशि जो है थोड़ा सा टेंशन ले लेता है, टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो सर आपको क्वाइट ऐसा है, क्यों लगा? और जब आप शशि क्वाइट है, वो बहुत चुप रहते हैं और लेकिन अच्छी बात करते हैं, और देवेंद्र सर निर्भय होकर बोलते हैं। दोनों रूममेट है मैम। नहीं, ठीक है। आप लोग करें, शुभकामनाएं हैं आप लोग को। थैंक यू सर, इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने इतना कुछ शेयर किया हम लोगों के साथ। थैंक यू सर। शुक्रिया। थैंक यू सर, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट।
Namaste sir, namaste ma'am, and thank you very much. Namaste, Shiva. नमस्कार।